Around 105 students are there in your class, ma'am. Yes, Okay, ma'am. you may begin, please. Good morning. This is our syllabus. I hope this syllabus is clear to all of you. This is our syllabus. In the first three classes, in the first four classes we covered this component of the syllabus, that is theory of communication, reading skills and writing skills. For today's class, we'll be looking at oral presentation, group discussion, public speaking, interview, net etiquettes. We'll also be looking at intra and interpersonal skills, that is monologue and dialogue, as well as we'll be discussing few of the suggested readings that are there in your syllabus. Before I begin with monologue and dialogue, let us come to levels of communication. Levels of communication have been divided into three parts. First comes the extrapersonal level of communication. What is extrapersonal level of communication? Extrapersonal level of communication takes place between a human being and a non-living human entity. For example, when we talk to our pets. For example, when we talk to plants. So this is an example of extrapersonal level of communication. Intrapersonal level of communication is a level of communication where the communication takes place within the mind of an individual. For example, monologue. Next comes the interpersonal level of communication. Interpersonal level of communication is a type of communication where the individual is communicating with another person, one person or more than one person. Interpersonal level of communication is further divided. First comes one-to-one communication. One-to-one communication is a type of communication where two individuals are communicating amongst themselves. Then comes group communication. Group communication can be divided into three parts: small group communication, large group communication, and mass media or mass communication. Small group communication, the group consists of 10 to 15 people. This is small group communication, communication taking place between 10 to 15 people. Usually, your GDs are a form of small group communication. Large group communication, the group size is hundreds to thousands of people. Mass communication is a large number or a communication uh, for whom for which the extent is quite large. So this is mass communication. Now your communication is in interpersonal category itself is also includes organizational communication. Organizational communication is formal in nature. It can take place internally as well as externally. For example, in the last class we did report writing in memo format as well as letter format. Letter format is inter organizational, while your memo format is intra-organizational. So this is an example of organizational communication. Okay. Um, Now the flow of communication, which we had already covered in the previous class, and you may get a question on flow of communication. Flow of communication is divided into three parts: vertical communication, horizontal communication, and diagonal communication. Vertical communication is a communication where the communication takes place between and point A and point B. Point A either could be lower in hierarchy and point B can be higher in hierarchy, or point B can be lower in hierarchy and point A higher in hierarchy. So depending on if the communications flow is from down the hierarchy to up the hierarchy, it is defined as upward communication. If communication is taking place from up the hierarchy, is flowing from up the hierarchy uh, low um, to downwards, it is known as downward communication. Then horizontal and lateral communication. This is a communication. This flow of communication
is between employees that are at the same hierarchical level. Diagonal flow of communication is a flow of communication where we cut across the organization's hierarchy. Communication networks. So we have informal formal patterns. We have chain network, Y network, wheel network, circle network, all channel network. If you may have seen the previous class recording on our flow of communication and the communication network, we had discussed the communication network for informal communication, which is the grapevine communication. For informal communication, we had already discussed, this is the grapevine communication, where we had discussed single strand gossip chain, probability chain, cluster chain. For formal communication too, we have a particular network. So this network is defined in 5 parts, is divided into 5 parts. First is your chain network. The chain network is a network through which we communicate through intermediaries who relay the message to the top. This is if the screen is visible to you, this is the first is the chain example of chain communication, where communication starts from point A and goes to point B, then goes to point C, then goes to point D. This is chain communication. This communication network is for formal communication. तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने हैं, आप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, डिफाइन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप शुरू करेंगे कि लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है. एक्स्ट्रा पर्सनल लेवल है, इंट्रा पर्सनल लेवल है, इंटरपर्सनल लेवल है. इंटरपर्सनल लेवल फिर डिवाइडेड है फर्दर, वन टू वन कम्युनिकेशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन में. ग्रुप कम्युनिकेशन स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, वो लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, वो मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है. इसके बाद आता है आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में कि जो नेटवर्क होते हैं आपके कम्युनिकेशन के फ्लो में, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में. आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल लेवल पे वर्टिकल भी हो सकता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें. हॉराइजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है. ये वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन जो है, ये नेटवर्क्स में डिवाइडेड है. इनका जो पैटर्न है, इन्हें नेटवर्क कहा जाता है. फॉर्मल नेटवर्क 5 टाइप के होते हैं. चेन नेटवर्क होता है, वाई नेटवर्क होता है, व्हील नेटवर्क होता है, सर्कल नेटवर्क होता है, ऑल चैनल नेटवर्क होता है. फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, grapevine communication, we discussed it in the first class too, but I'll come to it again. तो पहले जब हम फॉर्मल नेटवर्क की बात करें, we get to the chain network point A to point B to point C to point D. Then comes the Y network, where the communication starts from a Y. Right here, it is in shape of Y. The fifth diagram, the fifth illustration on your screen. So A here is the center of communication. From A, the point is going, the communication flows towards D, E, B, C. Okay, then comes wheel network. Wheel network where the individual members communicate with the central members separately. So the fourth illustration on your screen, where point E will communicate separately with point A, point D will communicate separately with point A, point B will communicate separately with point A, point C will communicate separately with point A. Then comes the circle network. Circle network is a network of communication where the members communicate with the person next to him or her. So point A communicates with point E, point D communicates with point D, point D communicates with point C, point C communicates with point B. All channel network in formal flow of communication is where the members have the freedom to communicate with anyone. So point E might communicate with point C. Point C might communicate with point D. Point D might communicate with point B. So this is your formal network of communication. When we come to the informal network of communication, पहले informal communication को क्या बोला जाता है?
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, द टर्म ग्रेप वाइन हमें 1980 में कीथ डेविस ने दिया था। ये 4 टाइप के इसमें नेटवर्क पैटर्न्स होते हैं: सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन। आपका सिंगल स्ट्रैंड कैसे है? पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है कि आपका जो पॉइंट ए है वो रैंडमली सिलेक्ट करता है कि वो पॉइंट डी को बताएगा, पॉइंट एफ को बताएगा, पॉइंट एफ रैंडमली सिलेक्ट करेगा कि वो पॉइंट आई को बताएगा, जे को बताएगा, के को बताएगा। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर, जहां पे पॉइंट ए बता रहे हैं पॉइंट सी और डी को, और पॉइंट ए बता रहे हैं पॉइंट एफ को। तो पॉइंट एफ जो है वो बता रहे हैं पॉइंट goes on to tell other people. So point B या I. So single strand में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है वो एक सिंगल स्ट्रैंड के तरीके से पास हो रही है, पॉइंट ए ने पॉइंट बी को। गॉसिप आपका प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है कि आपने रैंडमली सिलेक्ट किया और आपने इंफॉर्मेशन दी। क्लस्टर चेन और प्रोबेबिलिटी चेन में ये फर्क है कि क्लस्टर चेन में अगर पॉइंट ए ने पॉइंट सी और डी को बताया है तो वो रैंडम सिलेक्शन नहीं है। इंस्टेड पॉइंट सी और डी जो हैं वो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नॉट रैंडम लाइक इज द केस इन प्रोबेबिलिटी चेन। आपका जो गॉसिप चेन है, गॉसिप चेन इज just like the wheel communication sort of, but it is of course informal. तो आप उसका illustration is like wheel communication, entirely different. आपका जो गॉसिप चेन है उसमें आपने पॉइंट ए ने पॉइंट जी को बताया, एच को बताया, आई को बताया। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी चेन। इसके साथ आपको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिक, कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। अ, आपका लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे एक तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बताइए। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को आपको डिफाइन करना हो। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो इनफॉर्मल है नेचर में, इट गोज बियॉन्ड द professional obligation. The term grapevine was given to us by Keith Davis in 1980. There are 4 probability पॉसिबल कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रेप वाइन चेन। उसके बाद आप ये जो कन्फिग्रेशन हैं या नेटवर्क्स हैं इनको डिफाइन करेंगे। आप इसके साथ इनके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता सकते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये स्पीडी होता है कंपैरेटिवली आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन से। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की स्पीड ज्यादा होती है। इट इज लेस, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज इनएक्सपेंसिव। ये मल्टी डायरेक्शनल है, तो इसका जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो काफी फ्लेक्सिबल है। इट इज इम्पॉर्टेंट फीडबैक चैनल। तो आपको इसमें फीडबैक सुपीरियर्स का, द फियर ऑफ सुपीरियर्स कम हो जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में। इसलिए आपका जो फीडबैक है वो भी उतना ही स्विफ्ट होता है जितना स्विफ्ट आपका communication है। Grapevine is also participatory decision making. It can be used for as a parallel channel by organization. इसके disadvantages क्या है कि जो information है कई बार वो inaccurate हो सकती है। मैसेजेस जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो ओरल मीडियम है, ओरल मीडियम पे इट रिलाइज, सो मैसेजेस डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ द मैसेज। तो ये ग्रेपवाइन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके बाद आपका यूनिट 1 की हम बात करें तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। चैनल नॉइस और सिमेंटिक नॉइस में आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइडेड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। लेट अस कम टू what we have to discuss for today's class. So for today's class we'll be doing, this is just study material. We'll be doing the practice session on speaking skills. What are speaking skills? What all do they include? Um, okay.
तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, इसमें हमारा आता है मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, मिसकम्युनिकेशन, इंटरव्यू एंड पब्लिक स्पीच. दिस इज योर सिलेबस. Right here is your syllabus. And if we come to the syllabus, तो आपकी oral presentation है, आपके group discussion, public speaking, interviews, um, as well as these suggested readings. This is, I was discussing the components that are there in the study material. So the last chapter in your study material is on speaking skills. In this chapter, we discuss the features of oral communication. We discuss monologue and dialogue. We'll be discussing group discussions, facing interviews, public speech, and presentation. Let us come to oral communication. What sort of communication is oral communication? It is a form of verbal communication. Your verbal communication is divided into written and oral communication. What is the difference between oral communication and and written communication? Written communication is a type of communication. Can you please give me the difference between written communication and verbal and oral communication? The study material is available on the SOL website. There is no WhatsApp or Telegram group. I will post the link for the Google Classroom. If you are going to open the classwork section there, you'll find the material, the SOL study material, previous year question papers and the readings, as well as the previous class recordings and PPTs in it. The syllabus has also been uploaded there. Okay. Can you please tell me the difference between oral communication and written communication? So oral communication, and the basic difference between oral communication and written communication is your oral communication relies on your speech, while your written communication is inscribing syllables into the paper in order to um, you know communicate. Yes. Yes, written by hand. Good. So, this we have already in the previous class हम लोगों ने क्या किया कि written communication के बारे में डिटेल में बात करी, जब हमने लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, पैराफ्रेजिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग, ऐसे राइटिंग के बारे को डिस्कस किया. आज हम स्पीकिंग स्किल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे. तो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग योर your verbal as in your speech to communicate. So what are the features of oral communication? Oral communication के features ये हैं कि वो faster है और उसमें feedback instant होता है. It can also utilize non-verbal language to facilitate communication. For example, paralanguage. For example, your facial expressions, your body posture, so on and so forth, kinesics, proxemics. It can also be corrected midway. It is more economical, right? इसकी वीकनेसेस क्या है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है. इसलिए ओरल कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन में
जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसे डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. There is limited time for formulation of ideas. जब हम orally communicate कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि effective communication के लिए हमको अपनी जो ideas हैं उनको organized way में बताना है. Success depends on the attentiveness of the listener, और साथ ही अगर listener आपकी बात को decode कर पा रहा है. One can easily get diverted from the topic. So these are the strengths and weaknesses of oral communication. आपका एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि oral communication क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी strengths and weaknesses क्या क्या हैं. जब हम लिसनर की बात करें कि लिसनर का क्या रोल रहता है ओरल कम्युनिकेशन में, तो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग और हियरिंग में फर्क क्या है. लिसनिंग होती है जब आपने जो बात सुनी आपने उसे समझा भी. हियरिंग क्या होती है? इट इज सिंपली द फिजिकल एक्ट ऑफ रिसीविंग द साउंड सिग्नल्स. यू हियर व्हेन यू आर रिसीविंग द साउंड सिग्नल्स, लेकिन जब आप उन साउंड सिग्नल्स को डिकोड करते हैं उसे लिसनिंग कहा जाता है. लिसनिंग चार पार्ट्स में, चार स्टेप्स में डिवाइडेड है: हियरिंग, इंटरप्रेटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग इज ऑल्सो फीडबैक. आपका क्वेश्चन फीडबैक पे भी आता है एग्जाम में. व्हाट इज फीडबैक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक? प्लीज टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फीडबैक. दैट इट इज मेक अ कम्युनिकेशन साइकिल. आप एक कम्युनिकेशन साइकिल बनाइएगा, वहां पे आप बताइएगा कि फीडबैक कहाँ पे आता है. जब कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक कहाँ पे आता है? आपके स्पीकर ने मीडियम के थ्रू मैसेज पास ऑन किया, वो मैसेज किसके पास गया? लिसनर के पास गया. लिसनर ने क्या किया? डिकोड किया और फिर रिस्पॉन्ड किया. तो यहाँ पे फीडबैक आता है. फीडबैक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दोनों बताने हैं. इसके साथ इफेक्टिव लिसनिंग पे आप जब लिसनिंग पे बात करेंगे आप 4 स्टेप्स के बारे में बता सकते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं लिसनिंग के, टाइप्स ऑफ लिसनिंग कैसी होती है, अटेंटिव हो सकती है लिसनिंग, सिलेक्टिव हो सकती है, अप्रिशिएटिव हो सकती है, इवैल्यूएटिव हो सकती है, एम्पैथिक हो सकती है लिसनिंग. आपकी अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है? जब आप ध्यान से सुन रहे हैं. सिलेक्टिव जब आप कुछ कंपोनेंट सुन रहे हैं. अप्रिशिएटिव जब आप अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं. इवैल्यूएटिव जब आप सुन रहे हैं टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. एम्पैथिक लिसनिंग जब आप टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स सुन रहे हैं. तो बैरियर्स ऑफ लिसनिंग हो सकते हैं नॉइजी इन्वायरमेंट, प्री कंसीव्ड नोशन, डिसइंटरेस्ट, लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, स्पीकर्स वॉइस, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेज. अब आ जाते हैं स्पीकिंग पे. लिसनिंग के साथ नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? स्पीकिंग. जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो स्पीकिंग कितने टाइप की हो सकती है? इट कैन बी इंटरैक्टिव स्पीकिंग. जब यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग. पार्शियली इंटरैक्टिव where the speaker speaks more and the listener plays a minor role. नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है? वन साइडेड होती है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन साइडेड इंटरैक्टिव लिसनिंग या माइनर रोल है आपकी स्पीकिंग में स्पीकर का, तो मोनोलॉग पे हम आते हैं. मोनोलॉग क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वेयर द कम्युनिकेशन is with ourselves. So a monologue, as the term suggests, is an oral communication which is conveyed by one person. So it could be with ourselves or a one-sided conversation. Speaking जहाँ पे the listener has a minor role or a non-interactive role. So it is a long one-sided conversation. A monologue is when a single person is doing all the talking, whereas a soliloquy is when one is talking aloud to oneself. The difference between monologue and soliloquy. Soliloquy क्या है? Monologue का ही पार्ट है. Soliloquy क्या होती है? जब हम खुद से ही बात कर रहे हैं लेकिन जोर से बात कर रहे हैं. और monologue में क्या होता है? When one person is doing all the talking.
इसके बाद आता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक पर्सन के साथ या एक से ज्यादा लोगों के साथ। सो डायलॉग जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप किस पर्पस पे, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस पर्पस पे बात कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मोनोलॉग क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। डायलॉग क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस के कंपोनेंट में व्हेन वी टॉक अबाउट what are the principles when we are communicating, so Grice's cooperative principles are important to understand. Herbert Paul Grice was born in 1913, died in 1988, was a British linguist. Linguists are people who study language, जिन्होंने effective conversation, dialogue में क्या होना चाहिए, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस पे अपने ओपिनियंस दिए थे। इन ओपिनियंस को कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है, जिन्हें द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनर में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू ग्राइस क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्राइस हमें वो ही इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसी भी कॉन्वर्जेशन में जो करंट टॉपिक से रिलेटेड हो। दिस इज नोन एज मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी क्या है? ये एथिकल पार्ट है आपकी कॉन्वर्जेशन का, जहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एविडेंस होनी चाहिए। इसके बाद आता है मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस। तो हम जब भी कॉन्वर्जेशन का पार्ट होते हैं तो हमारे जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। मैक्सिमम ऑफ मैनर क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ मैनर अकॉर्डिंग टू ग्राइस इज इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं दे शुड बी a part of whatever we are communicating. They shouldn't be confusing, they shouldn't be ambiguous. Okay. So आपके जो डायलॉग्स हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। आपके एग्जाम में 15 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायलॉग पे आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपको सिचुएशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, you and your friend are having a telephonic conversation about the sports or about the annual fest in your college. Please write the dialogues. इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो डायलॉग्स पहले हमें समझना होगा। 4 कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका डायलॉग ऑफ इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में बन सकता है, जहां पे सिचुएशन होगी कि आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस गए, आप कुछ पूछ रहे हैं, तो आप डायलॉग्स लिखिए। आपका नेगोशिएशन के का क्वेश्चन बन सकता है, डायलॉग ऑफ नेगोशिएशन, जहां पे आप सेल्स पर्सन हैं और एक आपके कस्टमर हैं, तो आप इस तरीके का डायलॉग लिखिए बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर। तीसरा आपका हो सकता है कॉन्वर्जेशनल डायलॉग, जहां पे आप सिंपली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप के कॉन्टेक्स्ट में आपका डायलॉग राइटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्वर्जेशनल डायलॉग्स, आपका डायलॉग ऑफ नेगोशिएशन, आपका डायलॉग ऑफ इंक्वायरी। देन कम्स आपका ग्रुप डिस्कशन। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे इससे पहले, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का क्या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन स्मॉल ग्रुप हो सकता है, लार्ज ग्रुप हो सकता है और मास कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन हम जब ग्रुप कम्युनिकेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो हमें, एंड पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो हमें ग्रुप डिस्कशन एज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी समझाता है हमारा एसओएल स्टडी मटेरियल। तो जीडीज क्या है? जीडीज होते हैं, दे इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एंड दे इवैल्यूएट योर performance, they evaluate your personality traits as well as your decision making ability.
this is a GD, a group discussion, a discussion which evaluates your performance, your personality traits as well as your decision making ability. तो इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पे आप GDs का पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है, and you are being evaluated for your personality traits, performance as well as your decision making ability, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जीडी सबसे पहले एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. सो वी शुड all the participants who are a part of your group should be clear in advance about the discussion that is going to take place. GD एक interactive process है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक positive manner में each and every member of the group should be allowed to interact. जीडी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसलिए एवरी मेंबर शुड बी अलाउड टू प्रेजेंट देयर व्यूज freely. All the members should be allowed to equally participate. वो एक cooperative process है, so we should encourage our members to allow to participate in the GD. It is GD is a process where the role of shared leadership becomes extremely important. So each and every member of the group should share and perform the leadership function. Flexible, तो GD में क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो फ्लेक्सिबल होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका जो है वो फॉर्मल होता है. वी शुड स्टिक टू द टॉपिक, वी शुड अलाउ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट टू प्रेजेंट हिज और हर व्यूज, एंड वी शुड गिव आवर डिस्कशन अ प्रॉपर स्टार्ट एज वेल एज अ कंक्लूजन. हमारी जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जीडी की वो क्या है कि वी शुड हैव the background knowledge of the topic we are discussing. We should be analytical. That means we should be rational. We should be rational while we are understanding, interpreting the situations, the problems, condition, and topic. We should have a systematic approach, a strategic approach towards our topic. We should possess and develop leadership qualities. We should in our leadership qualities, the most important component is the team management skill. So we should create an environment where each and every member of the group is able to participate, is able to present his or her views. We should be patient and we should use appropriate language. And also the last but the most important things are non-verbal skills makes our communication effective. So your eye contact during GDs, your gestures, your facial expressions, all of this will reflect on your confidence, on your personality. So we should use appropriate non-verbal skills. Now, we have discussed group communication, we discussed dialogue and monologue. तो miscommunication कहाँ पे हो सकता है when we are presenting in front of people or when we are doing public speaking. So Shannon and Weaver gave us a model in 1948. In this model, information source से you can see the illustration. Information source से आपका बात कहाँ जा रहा है, transmitter पे. Your message is going to the transmitter as signal. It is being received by the receiver, and तो मिसकम्युनिकेशन नॉइस सोर्स की वजह से हो सकता है. तो जो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैरियर्स, ये अब सिमेंटिक बैरियर्स, इंटरनल बैरियर्स, ये आपकी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है उसको कम कर सकते हैं. तो जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं या क्लियर पिक्चर मैसेज में जो हम उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये सब नॉइस में कंसिडर किया जाता है. नाउ कमिंग टू पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एज प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है. इन योर स्टडी मटेरियल राइट है, हम जब पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग का एक पार्ट एज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एज प्रेजेंटेशन इंटरव्यूज होता है. तो जब भी हम इंटरव्यूज को देखें, इट इज
प्रोसेस जहाँ पे आपकी एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड। तो हम जब इंटरव्यू में प्रेजेंट हो रहे हैं तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमें ये 3 चीजों के बारे में पहले से ही पता हो बिफोर वी अपीयर फॉर द इंटरव्यू। दैट इज, डू वी नो आवरसेल्व्स, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट ourselves when we go to the interview, what are our strengths and weaknesses. We should clearly prepare on this topic before we appear for the interview. इसके साथ सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए, डू वी नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, व्हाट जॉब प्रोफाइल आर वी अपीयरिंग फॉर। नाउ पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि जो प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन ग्रुप स्पेसिफिक एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करते हैं। पब्लिक स्पीच आपकी ग्रुप स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं होती है। दोनों as a part of mass communication are addressing the large gathering, but the large gathering in case of public speech is random. So in public speech, your audience is not specific. In your presentation, your audience is specific. तो जब हम पब्लिक स्पीच कर रहे हैं तो हमको अपनी ऑडियंस को इवैल्यूएट करने का तरीका पता होना चाहिए। व्हेन वी लुक एट आवर ऑडियंस वी कैन डू दिस कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम पब्लिक स्पीच कहाँ पे कर रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल माइट come to listen to the speech. So accordingly हम अपनी vocabulary, अपनी language ये सब फ्रेम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो क्लासरूम में होती है, ऑफिस में होती है या बोर्ड रूम में होती है। तो प्रेजेंटेशन एक ग्रुप स्पेसिफिक एक्टिविटी है। इसके लिए जो हमारी प्रेपरेशन का तरीका है वो होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेमवर्क है प्रेपरेशन का वो पहले ही सारे मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाना चाहिए। जो हमारे प्रेजेंटेशन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन सब पे हमें मेन आइडियाज जो हैं उन्हें उन सब पर हमें एम्फसाइज करना चाहिए हमारी पोस्ट प्रेजेंटेशन एज अ पार्ट ऑफ आवर पोस्ट प्रेजेंटेशन एक्टिविटी। नाउ पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन से आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, यू माइट बी आस्क्ड टू राइट द स्पीच, टू राइट अ स्पीच। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ स्पीच, तो आपको एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यूड बी आस्क्ड टू राइट द स्पीच। उसका फॉर्मेट वुड बी जस्ट लाइक ऐसे राइटिंग। आप हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड द फाइनल पैराग्राफ। तो हम when we are looking at how to write, we can shift to what is there. We can also discuss what the readings that are there in your have been specified in your syllabus. So these are the readings that have been specified, that what is good writing, what is एडिटिंग, व्हाट इज फ्री राइटिंग। तो फ्री राइटिंग क्या होती है? फ्री राइटिंग जब भी हम विदाउट बॉदरिंग अबाउट स्पेलिंग, ग्रामर, नीटनेस, करेक्टनेस लिखते हैं, तो ये प्री राइटिंग का यूजुअली पार्ट होती है। हमारी जो राइटिंग एक्टिविटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। तो जो प्री राइटिंग एक्टिविटी है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फ्री राइटिंग का पार्ट होती है। तो हम जब फ्री राइटिंग की बात करें तो हम प्री राइटिंग से किस तरीके से राइटिंग पे पहुंच सकते हैं, अपना फाइनल जो काम है हम वो कैसे प्रिपेयर करें, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब फ्री राइटिंग करते हैं तो वी कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज। वो सारे आइडियाज हमने लिख लिए, राइट? तो इसको जब हम रिवाइज करते हैं और रीराइट करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो क्रिटिकल प्रिमाइस है या जो हमारा क्रिटिकल क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है फाइनल वर्क में, क्या जो हमारा क्रिटिकल प्रिमाइस है या जो हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, मेंटल मेकअप है अबाउट दैट क्वेश्चन, क्या हमारा जो काम है वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरीली आंसर कर पा रहा है। वी शुड अवॉइड कॉन्ट्रडिक्टरी arguments in our
ऐसे। तो जब हम अपना पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारे जो आइडियाज हैं, सारे आइडियाज हमने ब्रेनस्टॉर्म करते वक्त एक जगह पे फ्रेमवर्क बनाने के लिए लिख लिए। लेकिन जब हम उस फ्रेमवर्क को फेयर कर रहे हैं, उसको फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो क्रिटिकल प्रिमाइस है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको वो काम को एड्रेस करना चाहिए और अच्छे से उसे आंसर करना चाहिए। नाउ गुड राइटिंग इसलिए should be where the writer is conscious of the fact in your final draft you should be careful about the rules of grammar and formatting. तो जब हम rules and grammar और formatting की बात करें, when we are writing any essay in your exam, you will be asked to write an essay. What makes a good essay? How do you write a good essay? तो गुड ऐसे इज एन ऐसे जहां पे आपने अपने ऐसे का प्रॉपर हेडिंग लिखी, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका जो सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ है, उस इंट्रोडक्शन को वो बाकी के जो 3 पैराग्राफ है उन्होंने उस इंट्रोडक्शन को और अच्छे से समझाना चाहिए। आपका जो लास्ट पैराग्राफ है आपके ऐसे का, उसको आपने जितनी भी अभी तक बात की है उस चीज को समराइज या पैराफ्रेज करके लिखना चाहिए। सो दिस शुड बी अ स्ट्रैटेजी, दीज आर द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग। आपको ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम, आप ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम कैसे कर सकते हैं? राइट शॉर्ट सेंटेंसेस rather than writing complicated compound complex sentences until unless you are not very sure about the punctuations that you are using. Okay. नाउ गुड राइटिंग को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अपनी बहुत शार्प रखना चाहिए। वी शुड कंबाइन our observation skills with our perceptions and thoughts. गुड राइटिंग में क्या होता है कि हमारे जो परसेप्शंस हैं और हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका जो मर्जिंग है, this helps us in creating. Now, using the words that you're using in your writing should be appropriate. Try to use words that are able to express the fact that yes, you know about the टॉपिक। जैसे लास्ट क्लास में किसी ने जब ऐसे के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, एक एग्जांपल दिया था डीमोनेटाइजेशन का। तो जैसे डीमोनेटाइजेशन पे आप ऐसे लिख रहे हैं, इन सच अ केस हाउ डू यू गो अबाउट एन ऐसे सच एज दैट? You have to use words which are the topic specific words such as demonetization, the economic impact, the changes, what change with demonetization. तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड द टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं आपके इकोनॉमिक चेंजेस और the impact of it on Indian currency, how is it related to the strategic step towards improving GDP and all. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनका आप यूज करें। ओके, तो this is all for reading skills and writing skills. Let's quickly get an overview of what we have discussed so far. तो आपका यूनिट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से जो आपका क्वेश्चन आता है, इट इज ऑन मीनिंग, फीचर्स, यूजेस, साइकिल्स, फीडबैक एंड एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन का डिस्क्राइब कम्युनिकेशन, दे वुड आस्क यू टू डिफाइन कम्युनिकेशन एंड द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको मीनिंग भी बताना होगा, इसके आंसर में आपको मीनिंग बताना होगा कम्युनिकेशन का, उसके फीचर्स बताने होंगे। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, आपको इसके फीचर्स बताने होंगे, आपको इसके यूजेस बताने होंगे, आपको इसकी साइकिल बतानी होगी और आपको लास्ट में बात करना होगा
कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज फीडबैक। एक चीज का आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है कि अगर आपका क्वेश्चन आपसे डिफाइन कम्युनिकेशन पे आ रहा है या आपसे कह रहा है कि कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, तो आपको उसमें कम्युनिकेशन साइकिल को जरूर ड्रॉ करना है। दिस इज योर कम्युनिकेशन साइकिल इन योर स्टडी मटेरियल पेज 3। आपको अपने डिफाइन कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन में कम्युनिकेशन साइकिल को जरूर ड्रॉ करना है। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इसका कंपोनेंट है। जब आप एडवांटेजेस की बात करें तो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या आता है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर करेक्टनेस, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस एंड कर्टसी। सो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसके बारे में लिखना होगा। आपका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दैट कुड बी ऑन रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स से जो आपका क्वेश्चन आता है वो है कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक रीडिंग पैसेज दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसे इवैल्यूएट कीजिए, इसके बेसिस पे आप आंसर लिखिए। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं? सबसे पहले आपने पूरा काम पढ़ना है। आपने जब वो काम पढ़ा, तो जब आप काम पढ़ रहे हैं आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले आपने जो उसमें पॉइंट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया। जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं आपने उसे रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद आपने उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया। कैसे अंडरस्टैंड किया? क्लासिफाई करके, कंपेयर करके। उसके बाद आप उसे क्या करेंगे? अपने आंसर्स में अप्लाई करेंगे। अप्लाई, अगर वो आंसर के हिसाब से सही बैठता है, आपको अपने शब्दों में आंसर्स देने होंगे। अगर वो सही बैठता है ठीक है, नहीं है तो आप दोबारा से यू ट्राई टू एनालाइज, सिंथेसाइज। जब आप क्रिएशन तक पहुंचते हैं, सो यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट हैज बीन गिवन। स्पेसिफिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी आपको पैसेज में आंसर दिया गया है उसको आपको अपने शब्दों में बताना है। Now coming to the strategy for reading comprehension, तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि क्वेश्चन क्या है, राइट? क्वेश्चन क्या है? तो understand the main idea that is are being asked in the question and answer accordingly. Second, आपको क्या करना है? क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। आप जब प्रिडिक्ट कर लेंगे कि दिस इज द मेन आइडिया, ट्राई टू कनेक्ट इट विद what is given in the comprehension. Try to determine if the answer is correct or not. And your answer strategy should include paraphrasing and summarizing. You have to paraphrase the answer that has the the idea that has been given in your in your reading comprehension. You have to summarize that idea. Please write the answers in your own words. If the question in your reading comprehension is for 1 marks, or if it is for 2 marks, a 1 line and 2 line answer would be enough for it. But you have to answer. Please do not write exactly the what is जो भी exactly आपके comprehension passage में दिया है, प्लीज वो मत लिखिएगा। हम जब एसेज की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एसेज हम लिख सकते हैं, हम नैरेटिव एसेज लिख सकते हैं, हम एक्सपोजिटरी एसेज लिख सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज लिख सकते हैं। ये चारों टाइप के एसेज, और ये जो पीडीएफ है, आई हैव अपलोडेड इट इन योर classroom. The link for it I'll be sharing again. Now, finally, let us come to आपका जो राइटिंग जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में एक तो आपका ऐसे पे क्वेश्चन आ सकता है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है पैराफ्रेजिंग पे। पैराफ्रेजिंग के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसे पैराफ्रेज कीजिए। तो पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज में
पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन सब को आपको अपने शब्दों में बिना कुछ ऐड किए, बिना कुछ डिडक्ट किए लिखना है पैराफ्रेज्ड फॉर्म में। तो आप सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जो भी आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको एग्जैक्टली उसको अपने शब्दों में बताना है, दैट इज पैराफ्रेजिंग। आपका एक पैराग्राफ आ सकता है क्वेश्चन में, समरी आपको कहा जाएगा कि आप इसे समराइज कीजिए। तो समराइज करने में क्या होता है, यू ओनली हैव टू राइट द मेन आइडिया दैट इज देयर इन योर पैराग्राफ। तो समरी की लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। पैराफ्रेजिंग की क्या होती है, लंबी होती है। इसके साथ आपका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो है नोट मेकिंग में, नोट मेकिंग पर। तो नोट मेकिंग हम कैसे करते हैं, नोट मेकिंग हम करते हैं जहाँ पे वी वी आर क्रिएटिंग वी आर क्रिएटिंग so I have also discussed this previously, but हाउ डू यू डू नोट मेकिंग। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे, उसके बाद आप उसे सब हेडिंग्स देंगे, और साथ में आप एब्रिविएशंस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट हेयर ऑन योर स्क्रीन, आपने एक हेडिंग दी, देन कम्स पॉइंट ए, देन सब पॉइंट्स 1.1, 1.2, पॉइंट बी, दीज आर योर सब हेडिंग्स। So this is how you go about note making. If there are questions, please ask. We are done with our syllabus for communication in everyday life and the kind of questions that could be asked. आपकी बुक जो है, आपको जो रीडिंग सजेस्ट की गई हैं और जो बुक्स हैं, वो सारी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी गई हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं कि आपको डायलॉग लिखने को कहा जाएगा। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायलॉग लिखिए। आपको डायलॉग लिखने में क्या आएगा कि आपने बताए, आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको सिचुएशन दे दी गई कि इट इज अ situation of negotiation, it is a situation of conversation, it is a situation of inquiry। जैसे आप पूछताछ केंद्र में जाते हैं, अ, अ, आप टिकट्स खरीदने गए, मूवी में गए, वहां पे आप टिकट्स खरीदने गए, आपके और टिकट काउंटर में जो व्यक्ति बैठा है उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन है, वो किस तरीके का कॉन्वर्जेशन है, इंक्वायरी का। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको दे दी गई, तो आपको अकॉर्डिंगली डायलॉग्स लिखने हैं। कॉन्वर्जेशनल डायलॉग्स भी हो सकते हैं, जैसे मदर डॉटर, मदर सन के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, आपके नेगोशिएशन के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सामान लेने गए, तो वहां पे आपने नेगोशिएट किया, या व्हेन व्हाइल यू आर डिबेटिंग, तो आप नेगोशिएट करते हैं आइडियाज। तो ये तरीके के सिचुएशन पे आपके डायलॉग आ सकते हैं। दूसरा टाइप का आपका जो क्वेश्चन आएगा, वो है नोट मेकिंग पे। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस पैराग्राफ के बेसिस पे आप नोट्स बनाइए। इसका फॉर्मेट मैंने अपलोड किया है, प्लीज आपको ध्यान रखना है, आपके जो मार्क्स हैं वो फॉर्मेट के भी हैं। तो अगर उसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सेकंड थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपका पैराफ्रेजिंग। एक पैराग्राफ दे दिया गया, दे आस्क यू टू paraphrase. Fourth type of question, they would ask you to summarize. Fifth type of question, define communication.
6th type of question essay writing. 7th type of question reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड आपको वो 5 to 6 क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं. अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको जो आइडिया पैराग्राफ में दिया गया है उसको समराइज और पैराफ्रेज करना है अपने शब्दों में. Yes, I'll do that. If there are questions related to आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है कि 5 टर्न्स लिखिए या 10 टर्न्स के डायलॉग लिखिए, में डायलॉग लिखिए. अगर लिखा गया है 10 टर्न्स मतलब कि एक जो आपका कैरेक्टर है डायलॉग में उसको 10 डायलॉग्स दिए जाएंगे. इन टोटल आपको 20 डायलॉग्स लिखने होंगे. अगर आपसे कहा गया है 5 टर्न्स ईच तो 5 एक कैरेक्टर को डायलॉग दिए जाएंगे मतलब कि 10 डायलॉग्स ईच. All this information will be provided to you by SOL. Um, the date sheet, assignment, so on and so forth. If there are questions related to the topic we have discussed, interpersonal, INTER, interpersonal and intrapersonal and extrapersonal, interpersonal communication when it is happening between two people, extrapersonal communication between human beings and um, let's say pets or non-living things such as communicating with you communicate with your AI. It is an example of a communication between human beings and non-living and non-human entities. So this is an example of extra personal communication. Intrapersonal communication जहाँ पे व्यक्ति खुद से बात कर रहा है या वन साइडेड है communication. For example, monologue. I have sent all the PDFs. All the PDFs have been uploaded. I'll post the link again. Please let me know if there are further questions related to essay writing. आपका एक question essay writing पे भी आ सकता है. You'd be asked to write an essay. If there are further questions on anything, please related to the topic, please let me know. All this information will be provided to you by the SOL. So please keep on checking your portals, keep on checking the SOL website. Thank you, Neeta ma'am, for your constant guidance. Thank you, everyone, for your questions and your cooperation in class. Ma'am, may I please leave the class now since there are no questions? समरी क्या है? नोटिस नहीं, नोट मेकिंग. नोट मेकिंग एक पैराग्राफ दे दिया गया है और आपसे कहा गया है नोट्स बनाइए उसके बेसिस पे. तो नोट्स कैसे बनाते हैं हम? नोट्स की हम हेडिंग देते हैं. हेडिंग देने के बाद हम उसके सब पॉइंट्स पे आते हैं. जैसे पैराग्राफ 1 में एक पॉइंट डिस्कस किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट 1. उस पॉइंट 1 के नीचे 1.1, 1.2 करके आप क्या लिखेंगे? अपने जो भी उस हेडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको आप मेंशन करेंगे. नोट मेकिंग की एक खासियत ये है कि नोट मेकिंग में लंबे सेंटेंसेस नहीं होते, छोटे सेंटेंसेस होते हैं. 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस होते हैं. आप एब्रिविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नोट मेकिंग को प्लीज बॉक्स में बनाइएगा. लेट मी शो यू नोट मेकिंग के उसमें. ओके, लेट मी कम टू दिस. तो आपके गूगल क्लासरूम में हम जाते हैं. दैट आई हैव अपलोडेड द मटेरियल दैट आई हैव अपलोडेड. तो आप अपने क्लास वर्क में जब जाएंगे गूगल क्लासरूम के तो नोट मेकिंग पे मैंने आपका ये पीडीएफ अपलोड करी है.
यहाँ पे पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो आपको ये फॉर्मेट दिखेगा नोट मेकिंग का। आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है। आपने क्या लिखा, सबसे पहले पॉइंट 1 लिखा, फिर 1.1, 1.2, 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके का एक पैराग्राफ दे दिया गया, तो इस पे आप नोट मेकिंग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। पहले पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई है, फीचर्स ऑफ, क्या करी गई है। यस, पहले पैराग्राफ में इसी के बारे में ऑथर बात कर रहा है। तो आपने उसे क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ का पॉइंट 1 लिख के उसको एक हेडिंग दे दी। तो इस तरीके के एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप एब्रीविएशन यूज करेंगे उसको आपको बॉक्स में बताना है कि ये एब्रीविएशन है। हाउ तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट में 1.1, 1.2, 1.4 करके पॉइंट बात करी। उसके बाद सेकंड हेडिंग के नीचे उसकी इम्पोर्टेंट बात करी। सो दिस इज हाउ नोट मेकिंग इज डन। समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग इज दिस। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, आप पैराफ्रेजिंग में यू आर टेलिंग द मेन आइडिया, द एग्जाम्पल, द सपोर्टिंग आइडिया, जो भी पैराग्राफ में दिया गया है इन योर ओन वर्ड्स। आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप डिडक्ट नहीं कर सकते। समराइजिंग क्या होती है, पैराफ्रेजिंग सेम लेंथ की होती है लगभग, जो इतना आपकी लेंथ है पैराग्राफ की, क्योंकि उसमें आप सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, सपोर्टिंग आइडियाज है, मेन आइडियाज हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। आपकी जो समराइजिंग है, समराइजिंग में क्या होता है, यू आर ओनली डिस्कसिंग द मेन आइडियाज। ऐसे राइटिंग की वर्ड लिमिट अगर आपको स्पेसिफाई की गई है, फाइन, अदरवाइज राइट योर एसेस ऑफ अराउंड 500 to 600 वर्ड्स एटलीस्ट। एक्सपोजिटरी ऐसे उस तरीके का ऐसे होता है जहां पे आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन वो होता है जहां पे आप टॉपिक को सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई हैव पोस्टेड एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी क्लास। नेट एटिकेट्स देखिए आप, हम इस तरीके से देख सकते हैं। हम ने ईमेल लिखा, ईमेल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। तो अगर हम हम अपने सीनियर को लिख रहे हैं तो अवॉइड यूजिंग डियर। इसके साथ साथ अगर आप डियर लगा रहे हैं तो आप कब लगाते हैं, जब आपका इंटरेक्शन थर्ड फोर्थ बार आपने इंटरेक्शन का, आप उस व्यक्ति को जानते हैं। तो जब आप अपने सुपीरियर्स को मेल लिख रहे हैं तो अवॉइड राइटिंग डियर, राइट। यू शुड राइट रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या सिंपली मैडम एंड सर। ये ईमेल की हम बात कर रहे हैं। और नेट एटिकेट्स उसी तरीके से हैं जैसे ग्राइस की कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, इंफॉर्मेशन शुड बी कर्टस, इंफॉर्मेशन शुड बी appropriate, it should be evidenced। जॉब लेटर या कवर लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर के पैटर्न में ही लिखा जाता है। उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो आपकी जॉब लेटर से रिलेटेड होगी, उसके साथ रिज्यूमे अटैच किया जाता है। पर आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में रिज्यूमे नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन जो भी पैसेज है आपने उसे पढ़ा, उसके बेसिस पे आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आंसर आपने अपने शब्दों में करना है। यस, सब पॉइंट्स जो हैं, आपकी जो हेडिंग है सिर्फ उसके बारे में डिटेल देते हैं। आई अपलोड द PYQs। हाँ, अगर देखिए इंटर इन ऑर्गेनाइजेशन के वजह से आपको क्वेश्चन आया कि अपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट लिखिए, तो आप उसे लेटर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। मेमो फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर आपकी डेजिग्नेशन भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप कल्चरल 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 सोसाइटी के पार्ट हैं और आप अपनी जो हेड हैं उनको लिख रहे हैं। तो इस तरीके का अगर स्पेसिफिक डेजिग्नेशन स्पेसिफिक है तो उसे आप मेमो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वरना आप उसे लेटर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने आपको जो लिंक पोस्ट किया है, आपको सिंपली अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से उसमें
उसको एक्सेस करना है। डायलॉग जो होते हैं, जो आपका कॉन्टेक्स्ट दिया गया होगा उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डायलॉग लिखने हैं। कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में भी आप डायलॉग लिख सकते हैं। आपका जो डायलॉग है वो 4 पैराग्राफ का नहीं होना चाहिए। आप उसे 5 to 6 लाइन्स में भी कह सकते हैं। तो उसे शॉर्ट रखिएगा, 2 to 3 लाइन्स, 5 to 6 लाइन्स। और साथ में आपका जो डायलॉग होना चाहिए वो एज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन शुड ओनली डिस्कस द टॉपिक दैट यू आर डिस्कसिंग। आपको नोट मेकिंग में बॉक्स बनाइएगा, लेटर राइटिंग में बॉक्स बनाइएगा, आप पैराफ्रेजिंग में बॉक्स बना सकते हैं, आप एब्रिविएशंस के लिए जो नोट मेकिंग के साथ जाता है उसमें आप बॉक्स बनाइएगा। प्रेजेंटेशन जब आप ग्रुप स्पेसिफिक एंड के सामने, स्पेसिफिक ग्रुप के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है जब सारे व्यक्ति जो एक ग्रुप में हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। So we are done with the syllabus. In case you have any queries, you may always contact me on MS Teams. Thank you, Neeta ma'am, for your constant guidance. I'll see you again probably later. And thank you for your cooperation in the class. Have a good day.